fine. So today's topic is about exception. What is exception? Why this exception occurs? What are built-in exception and how we can deal it with this कैन exception? हैंडलिंग जो मतलब अ, हम कोई एक्सेप्शन हो जाता है जैसे कि Hmm, right. बात जो हो जाता है जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं Hmm. The first thing is exception. Exception means error. Correct. एरर Exception means error. तो ऐसी चीजें जो मतलब पॉसिबली हमने Hmm, सोच करके उसको उसका एक फिक्स नहीं किया होता है hmm. जैसे कि हमने These यूजर से कोई इनपुट लिया और उस इनपुट को हमने कंडीशन में चेक करा दिया बट उसके पहले हमने ये चेक नहीं किया कि इनपुट टाइप अगर गलत एंटर कर देगा यूजर तो क्या होगा तो अगर एक्सेप्शन को जनरली हमें डिफाइन करना हो तो जो एक्सेप्शन कैन बी कॉल्ड एन एरर एरर which जी can occur due to some syntax based problem or logical problem. जी Syntax based problem are mostly solved at the time of compile time. जी This C sharp is a type safe language, so most of the error, most of the problems are solved at the compile time. That means we can check the error if we declare any variable like integer and assigning string value, then your compiler will notify, correct, जी that it cannot assign integer to string data type. But sometimes what happens, these errors comes later if some condition is met or some invalid data is given or some logical error is there. So these जी errors occur. The exceptions are the error that can occur because of logical failure or any syntax related failure. तो यहाँ पर जो हमारी ऑब्जेक्ट क्लास है मेजर, जो ऑब्जेक्ट क्लास होती है, ऑब्जेक्ट क्लास के डाउन लाइन में, इसकी जो डाउन लाइन है उसमें एक हमारी एक्सेप्शन क्लास बनी है सी शार्प में, करेक्ट। हम्म, ऑब्जेक्ट क्लास इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट से ही सारे स्ट्रिंग और सारी चीजें हैं, तो यहाँ से हाँ एक्सेप्शन क्लास है। अब एक्सेप्शन क्लास जो हमारी होगी उसमें हमारे दो तरह के एक्सेप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन कैन बी system exception, another exception can be application exception, correct। system exception जैसे क्या है वो हम अभी समझेंगे। तो system exception and next can be application exception. What पर is वो application? स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी Okay, recording is on. Okay, now it's visual. जी Okay, so system exception and application exception. जी Correct. In system exception, there can be any external exception. So further we can divide it in two parts. जी एक external exception because of some external resource error, that is external exception, and it can have some null reference exception or something. So null reference, correct, invalid operation exception. So there can be different exception for that. If we are performing any invalid operation, so we can have invalid operation exception. Another exception can be
argument exception, क्यों meant exception. Next, like we have another exception, like we are working with class, then can be access violation exception. So what are these exception? System exception and application exception. Application exception means if application is not responding well, and system exception, there can be null reference exception, like we have declared any variable, but we are not providing it any value, and we are further trying to use it, so the variable will have null value, correct? यस सो ये जो कैटेगरी आएगी किसमें आएगी, नल रेफरेंस में आ जाएगी। नल ठीक, ऐसे है हम मान लो इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन करना चाहते हैं, तो इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन में क्या हो सकता है, लाइक हमने कोई डिवीजन बाय जीरो टाइप। हाँ तो इस तरह के एक्सेप्शन हो सकते हैं। आर्गुमेंट एक्सेप्शन, जैसे मेथड में हमें 3 पैरामीटर पास करने हैं, है ना, कोई फंक्शन है और जी उस फंक्शन की बॉडी में डिफाइन है कि 2 आर्गुमेंट जाएंगे या 3 आर्गुमेंट जाएंगे, तो जो भी मेथड का सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर एंड टाइप, सिग्नेचर एंड टाइप, टाइप सिग्नेचर मीन्स कि उसका रिटर्न टाइप क्या है, किस तरह से है, और उसका टाइप का मतलब रिटर्न टाइप क्या है, सिग्नेचर का मतलब नंबर ऑफ आर्गुमेंट और उनका डेटा टाइप क्या है, करेक्ट? जी तो इस तरह से इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, आर्गुमेंट एक्सेप्शन है। एक्सेस वायलेशन एक्सेप्शन, मान लो हमने कोई ऐसी क्लास बनाई जिसको हमने प्राइवेट कर रखा है और हम उसे कहीं इनहेरिट करना चाहते हैं, है ना, तो इस तरह की चीजें जो है हमारे पास जो आएंगी वो एक्सेस वायलेशन एक्सेप्शन में आ जाएंगी। ऐसे जो हमारे पास एप्लीकेशन एक्सेप्शन होते हैं, तो उसमें कई बार ऐसे कोई हमारा बिजनेस रूल फेल हो गया, है ना, तो उसकी वजह से हमारे पास ऐसे एक्सेप्शन आ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम जनरल तौर पे देखें कि एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, तो अगर लेट से उनको हम कैटेगराइज करने बैठ जाएं, तो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन जैसे हो गया, फाइल नॉट फाउंड। अब फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का मतलब क्या हो सकता है, लाइक हमारी फाइल डी ड्राइव पे है, करेक्ट, दिस इज जी अ डी ड्राइव, एंड हम यहाँ पे फाइल का कोई रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक हमने यहाँ पे कोई फाइल का ऑपरेशन किया, ठीक है जी इस तरह से, तो हम कोई भी फाइल का ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने मोड बताया कि कौन से मोड में फाइल, रीड मोड, या राइट राइट मोड, हाँ है ना, जी वट एवर जितने मोड होते हैं, और फिर हमने पाथ दे दिया। तो समटाइम्स अगर ये पाथ हम प्रॉपरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस पाथ में कोई एरर है, करेक्ट, तो क्या जी आएगा, फाइल नॉट फाउंड फाइल नॉट एक्सेप्शन। फाउंड आएगा अब वो फाइल कोई भी हो सकती है, लाइक CSV फाइल हो सकती है, हम नोटपैड पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम एक्सेल पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक वी आर परफॉर्मिंग, जेसन फाइल हो सकती है, XML फाइल हो सकती है। तो जितने भी इस तरह की फाइल के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं, पाथ इज नॉट एबल टू फाइंड, तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। इसी तरह से फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है, ठीक है, कि एक फॉर्मेट एक्सेप्शन को, स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं, पार्जिंग का मेथड अगर सही नहीं है, तो इस तरह हाँ से फॉर्मेट एक्सेप्शन आ सकता है। एरे अगर है हमारे जावास्क्रिप्ट पास, में तो हो जाता था, मतलब कि जावास्क्रिप्ट में तो नल वैल्यू या अनडिफाइंड या नॉट अ नंबर आ जाता था उसमें, बट हाँ यहाँ पे क्योंकि ये टाइप सेफ लैंग्वेज है तो यहाँ पे होगा ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे अब जैसे एरे है, तो एरे में अगर हमारे पास 0 लोकेशन है, 1 लोकेशन है एंड सेकंड लोकेशन है, जी तो इफ वी आर एक्सेसिंग एरे एट द पोजीशन 3, व्हाट विल हैपन, इट विल आउट ऑफ रेंज आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन। इस तरह से हमारे पास होता है।
ऐसे हमारे पास की नॉट फाउंड एक्सेप्शन, अगर हम डिक्शनरी के साथ डील कर रहे हैं, उसकी की ही नहीं है ना, हाँ या डिक्शनरी के साथ सॉर्टेड डिक्शनरी को हम यूज कर रहे हैं तो की नहीं है, तो एरर आ जाएगी। ओवरफ्लो एक्सेप्शन, ओवरफ्लो एक्सेप्शन का मतलब क्या हो सकता है कि इंटीजर अगर हमने वेरिएबल लिया है, करेक्ट, तो जी इंटीजर की, अब हम कैसा इंटीजर हम ले रखे हैं, या हमने चलो ले लिया बाइट, करेक्ट, जी। तो बाइट हमारा जो होगा वो 256 तक काम करेगा। इसी तरह से शॉर्ट हमने ले रखा है, ठीक है, तो शॉर्ट की एक अपनी लिमिट है। इसी तरह से हमने इंट 32 ले रखा है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये वैल्यूज जी हैं, 21, 47, 48, 36, 48, ये है ये। जी। तो अब इससे अगर बिगर वैल्यू पे हम डील कर रहे हैं तो क्या होगा, जो है ओवरफ्लो एक्सेप्शन होगा, या हाँ मेमोरी का जी भी ओवरफ्लो हो सकता है। मतलब ये तो डेटा टाइप की बात हो गई, जी कई बार ऐसा हो सकता है कि मेमोरी ओवरफ्लो भी हो जाए, करेक्ट। हमारे जो भी ये यहाँ पे सिस्टम होता है, अगर यहाँ पे देखो तो सिस्टम का क्या है, एक हमारी यहाँ पे मेमोरी का यूसेज है, करेक्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ मेमोरी वी आर यूजिंग। सो कई बार ऐसे हमने गलत कोड लिख दिया जो बहुत ज़्यादा मेमोरी इंटेंसिव हो गया, जो सीपीयू टाइम बहुत ज़्यादा ईट कर रहा है, करेक्ट। तो जी समटाइम्स देयर कैन बी पॉसिबिलिटी द सीपीयू यूसेज विल बी हाई, मेमोरी कंजम्पशन विल बी हाई, डिस्क स्पेस भी हो सकता है। तो देयर कैन बी डिफरेंट एक्सेप्शन बेस्ड ऑन दैट। तो आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन, इफ इट इज नॉट हैविंग एनफ स्टोरेज, है ना, जी तो आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन, स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, ये भी मेमोरी का ही एक्सेप्शन है कि हमारी जितनी रैम है, तो रैम पे जितना हमारे पास यहाँ पे स्टोरेज है, अगर हम जी उससे ज़्यादा का ऑपरेशन, तो स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन यहाँ जनरेट हो गया, तो ये मेमोरी से जी फिर इसी तरह से देखा होगा टाइम आउट एक्सेप्शन होता है ना। तो टाइम जी आउट एक्सेप्शन का मतलब लाइक हमने कोई एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, ये हमारा यूजर इंटरफेस है, और इस यूजर इंटरफेस से हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैसेज टाइप करा, करेक्ट, यहाँ पे एक हमने मैसेज टाइप किया यूजर को, और यहाँ से ईमेल सेंड करने का हमने बटन दबा दिया, करेक्ट, इस तरह से ईमेल सेंड कर रहे हैं। तो अगर इस बटन के क्लिक पे ईमेल मान लो सिंगल पर्सन को जा रही है, तो हो सकता है ईमेल भेज दिया। लेकिन सपोज अगर हमने यही ईमेल हमारे पास यहाँ पे सिंगल ईमेल ना हो करके हमने कोई डेटाबेस यहाँ सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट, हाँ हाँ हमने सेलेक्ट कर लिया कॉलेज 1, इसी तरह से कॉलेज 2, मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, तो जी उन यूनिवर्सिटी कोई हाँ नया रूल लाएगी तो पूरे सारे कॉलेजेस को क्या करेगी, मेल फॉरवर्ड करेगी, भेजेगी जी हाँ या सारे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करेगी। जी तो क्या हो सकता है कि इस तरह से ईमेल यहाँ पे अब हमको 50,000 को भेजना था, तो 50,000 को जब भेजना था तो पता लगा एक ईमेल भेजने में कुछ सेकंड का टाइम लग रहा है, या मिली सेकंड का टाइम लग रहा है पूरे साइकिल को, ठीक है। जी तो 50,000 टाइम हमारा लूप चल रहा है या कुछ भी है, तो कई बार ऐसा टाइम आउट हो सकता है, करेक्ट। हाँ तो यहाँ पे हो सकता है मैसेज हम भेज रहे हैं तब भी ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हाँ टाइम आउट हो गया, या हम डेटाबेस से कोई कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे हैं, करेक्ट। मान लो ऐसी भी चीजें पॉसिबल हैं कि हमारा डेटाबेस, हमारा एप्लीकेशन किसी अलग लोकेशन पे है, करेक्ट, हाँ और सर्वर पे हाँ लोकेशन अलग लोकेशन पे है, बट हमारा डेटाबेस कहीं अलग लोकेशन पे है। जी हो सकता है कि ये हमारा एप्लीकेशन को जो है बिगरॉक पे हो, करेक्ट, जी बिगरॉक एक सर्विस प्रोवाइडर है होस्टिंग का, करेक्ट, हाँ हाँ या हमने कह दिया चलो ये एज्योर पे है, ठीक है, जी जी एज्योर पे है, और हमारा डेटाबेस यहाँ पे हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे हो, मान लो हमने कहा कि ये AWS पे है, ठीक, जी तो ऐसा भी हम कर सकते हैं हाइब्रिड एप्लीकेशन, जरूरी को थोड़ी कि सारी चीजें एक ही जगह रखें। हाँ तो हमने इसके साथ इसका हैंड शेकिंग होगी, करेक्ट, हाँ तो हाँ हैंड शेकिंग जो ये होगी रिक्वेस्ट और रिस्पांस का, तो कई बार ऐसा जी हो सकता है कि टाइम आउट हो जाए या कनेक्शन ब्रेक कर जाए ड्यू टू सम रीजन, करेक्ट। जी हमने ऐसा कोई रिकॉर्ड फेच कर लिया, जैसे लेट से
तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बल्क ऑपरेशन है, मान लो तुम रिकॉर्ड्स को हैंडल कर रहे हो, तो पता लगे रिकॉर्ड तो इस यहाँ डेटाबेस में हमारे पास 20 मिलियन है, करेक्ट। हाँ हाँ लेकिन 20 मिलियन रिकॉर्ड को अगर हम एक बार में गेट की क्वेरी चला दें और 20 ब्राउजर पे 20 मिलियन रिकॉर्ड यहाँ डिस्प्ले कराने तो लगेंगे तो क्या ब्राउजर भी होगा? हैंग हो जाएगा। ब्राउजर तो जाएगा ही, प्लस बीच में जो तुम्हारा होस्टिंग सर्वर है, हाँ वो भी इसकी भी बैठ एक जाएगा। इसकी भी एक लिमिटेड मेमोरी है, इसका सीपीयू है, रैम है, करेक्ट। हाँ इसकी भी एक बैंडविड्थ होती है। हाँ, तो इसका अपना हार्डवेयर है। तो ये जो तुम्हारा मतलब एप्लीकेशन है, इसकी एक अपनी मेमोरी होती है। जैसे डॉटनेट में हम लोग यूज करते हैं तो W3 प्रोसेस, वर्कर प्रोसेस बोलते हैं, वर्कर प्रोसेस, कि हमारा पूरा डॉटनेट का जो एप्लीकेशन होगा उसके लिए वर्कर प्रोसेस चलती है, और वो पर सेकंड इतने मिलियन रिक्वेस्ट को परफॉर्म करती हैंडल हैं, कर सकते करेक्ट। हैं। जी। तो हाँ अब जैसे पर सेकंड का मतलब, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसे इस तरह से टेस्टिंग करता है, ASP.NET परफॉर्मेंस, करेक्ट। और तो अगर हम ASP.NET परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करते हैं, लेट से हम इसी पे आ जाएं ASP.NET की साइट पे, दैट इज जी बेटर प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने एक क्या किया कि ये देखो, परफॉर्मेंस का एक कंपैरिजन किया, ठीक है। जावा सर्वलेट पर सेकंड कितनी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, 2.20 मिलियन। ठीक है। डॉट नेट, 7.02 मिलियन। नोड जेएस। 0.6 मिलियन। तो इसीलिए मार्केट में दो ही टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती हैं अगर इंटरप्राइज लेवल का एप्लीकेशन है, जावा और डॉट नेट बैकएंड के लिए, करेक्ट। जी जी मतलब ये रोबस्टनेस है इनकी। बाकी जो स्टार्टअप है या कोई छोटे एप्लीकेशन है, दैट कैन बी नोड, व्यू, या कोई भी जेएस हो सकती बैकएंड के लिए, बट जी। दीज आर द बेस्ट वन, जिसमें से डॉट नेट का मार्केट शेयर इसीलिए बढ़ता जा रहा है हम्म। क्योंकि वो आज इस लेवल पे है। जी। वो इनफैक्ट डॉट नेट कोर का, डॉट नेट कोर, हाँ मतलब हाँ, डॉट नेट तो। हम्म, ठीक है। तो ये भी एप्लीकेशन हो सकते हैं कि टाइम आउट का एक्सेप्शन हो गया, तो डिफ हाँ नॉट सपोर्टेड एक्सेप्शन हो सकता है। तो नॉट सपोर्टेड में मान लो कोई ऑपरेशन ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से सारे एक्सेप्शन हमें लर्न नहीं करने हैं, बट हमें अगर ऐसा कुछ एक्सेप्शन आता है तो उस एक्सेप्शन को हमें रीडिंग करना और उस एक्सेप्शन को समझ के काम करना, ये पता होना चाहिए, करेक्ट। जी। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सेप्शन है। अब मान लो प्रिंटर ही तुमने लगा रखा है, करेक्ट। हाँ हाँ मशीन हाँ से मशीन से तुमने प्रिंटर को ऐड ऑन कर रखा है, यहाँ से तुम्हारी अब मशीन है, जी और लेट से तुम्हारा कोई प्रिंटर है। तो अब हो सकता है कि प्रिंटर का ड्राइवर का इशू हो, या हो सकता है मशीन पे कोई ड्राइवर है, करेक्ट। हाँ या इसका काम पोर्ट या डी काम पोर्ट होते हैं विंडोज में। तो काम या डी काम पोर्ट या कोई भी चीज है जो काम नहीं कर रहा है, तो ये भी जी फेल्योर हो सकते हैं। तो जी मतलब हार्डवेयर फेल्योर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर फेल्योर हो सकते हैं, मेमोरी के फेल्योर हो सकते हैं, लॉजिकल बिजनेस रूल में जैसे कह दिया इतने परसेंट टैक्स कटेगा सबका, ठीक है। जी। तो अब गलत कोड लिखा है तो वो जितना लिखा होगा वही करेगा। हाँ या हमने डेसिमल के 8 प्लेस तक की हैंडलिंग करनी थी, हमने 4 प्लेस तक किया है, तो अब हमारा मिलीलीटर में पेट्रोल पंप का रिकॉर्ड है या गोल्ड का रिकॉर्ड है, तो कुछ भी, तो वो तो बिजनेस रूल का इशू है ना। हाँ तो अगर हाई लेवल पे देखें तो कौन कौन सा टाइप के एक्सेप्शन हो सकते हैं, एक तो मेम हमारे पास हार्डवेयर का एक्सेप्शन हो सकता है, करेक्ट। जी हार्डवेयर में बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, काम डी काम पोर्ट होते हैं उनके एक्सेप्शन हो सकते हैं, एप्लीकेशन में एक्सेप्शन हो सकते हैं, और हमारे लॉजिकल बिजनेस रूल के फेल्योर एक्सेप्शन हो सकते हैं। बाकी तो जी एरे है, इनवैलिड रूल ऑपरेशन है, तो ये सारे एक्सेप्शन। तो इतनी आइडिया होनी चाहिए कि व्हाट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इज एन एरर that can occur in application because of different reasons,
It can be related with some hardware, it can be related with business rule, it can be related with any logical issues, correct? It can be जी related with memory, it can be related with timeout. So stack overflow, memory overflow, right? So जी different exception can occur. Now we will learn how to handle the exception. If any exception comes, then how we are going to handle. Handle जी means if business rule is wrong, it will not automatically correct. You have to correct, but you will come to know that हाँ particular kind of error is coming. एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये नहीं होता है कि अपने आप कोई वो एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा, करेक्ट? जी If exception is coming, then we need to handle the exception in C sharp. How we can handle and how can log. Log means किसी जगह पे एक्सेप्शन को हमने स्टोर करा लिया डेटाबेस में या फाइल को, लेटर हम देख लें कि हाँ क्या एरर आई थी, जी करेक्ट? तो जो हाँ जहाँ तक कि हम एरर को ट्राई हैंडल कर सकते हैं, तो डिफरेंट हमारे पास तरीके होते हैं। तो नॉर्मली हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करते हैं, ट्राई कैच, ये सब वर्ड्स पहले समझ में आने चाहिए, करेक्ट? जी जी ट्राई कैच फाइनली, इस तरह से हमारे पास हैं। तो इन सारे कीवर्ड्स का हम यूज करेंगे ट्राई कैच फाइनली का, तो हम एक्सेप्शन को चेक कर सकते हैं कि हाँ क्या एक्सेप्शन है हमारे पास, ठीक है? तो कोई भी हम जनरल एग्जांपल लेकर के उसको ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ किस टाइप का एक्सेप्शन हो सकता है। तो तो अगर हम कोई भी एक्सेप्शन जनरेट करना चाहते हैं या हमने जी प्रोग्राम को लिखा है उसमें एक्सेप्शन आ रहा है, तो हेयर वी विल क्रिएट एक्सेप्शन नोइंगली, जानबूझ के एक्सेप्शन बनाएंगे और उसको देखते हैं, ठीक है? जी सो हेयर लेट मी रिमूव दिस, ऑल दिस, ओके। Suppose I have a value n, correct? And जैसे yes, in n we are just trying to input a value, जी console dot read line, correct? जी Now let me print this console dot write line. So जी at the compile time it is giving the error, uh, हम्म giving the error message actually. हाँ So here in the error list, there can be different types of error, like errors, warnings, information, जी fatal error, correct? हम्म So there can be different types of. Suppose we have fixed it for some time जी in the dot purge, but now based on syntax it will not check. Based on syntax it चेक will not check. But if I run the application and instead of providing value integer, I'm providing it string value, correct? जी हम्म Syntax error that we have handled at compile time, हाँ but instead of I am giving 10h, okay, जी 10h unhandled exception. That means system सिस्टम dot फॉर्मेट एक्सेप्शन format input string, this was नॉट इन अ not in करेक्ट correct format. इसकी एक्सपेक्टेशन जो भी है क्या है, ठीक है? तो अगर हम इस तरह से भी हमारे पास तमाम सारे एक्सेप्शन हो सकते हैं। अब हम इस एक्सेप्शन को अगर हमें हैंडल करना है या कुछ भी करना जी है, देन वी हैव ट्राई कैच ब्लॉक, करेक्ट? हाँ ट्राई कैच ब्लॉक ऑल दैट थिंग। सो what is the syntax? We just write try and then राइट curly braces, okay? जी Inside try
and then after that we have Okay. catch, and similarly we write exception ex. We जी will not use e, never use, because e is the sometimes instance in .NET, correct? जी E is the instance in .NET, so mostly you can write any other thing, जी but don't use E, because E is the event handler, and this can cause problem. So that's why people write EX or something. हम्म Okay, you can do some EX1. So here we are saying this is the try block जी where we will write our business logic, and हाँ if any exception comes, then it will catch, it will check जी what kind हाँ of exception has come, हाँ उसके right? बाद क्या आपको टास्क परफॉर्म करना है वो हम नीचे लिख देंगे Let me write same thing. So I have given int dot parse goal dot read line. Okay, and here I have not given anything, correct? जी जी Let me put the breakpoint over here and then start debugging. Then it is asking to input a value. So I जी am giving 10 W, correct? जी What is exception is caught. जी That means user is not directly seeing exception over here, correct? करेक्ट We have caught the exception using हाँ catch बट हमने हाँ हमने पकड़ लिया था जी यहाँ पे, और हम यहाँ से इस exception की details को देख सकते हैं. हाँ We can see the exception details over here. So here is the exception message that you can see. What is the exact message? The string 10W was not in correct format. For more details, you can check the stack trace. And these are the property we can access ex dot, correct? जी Ex EX dot डेटा EX HR रिजल्ट ex dot stack trace, ex dot message, because what will happen, sometimes we want to save this exception in our database or any text file or somewhere, correct? हाँ For future purpose. So in the stack trace, what is saying, system dot number, throw exception, and this one int dot parse. तो int dot parse में हमने string value हमने इनपुट किया, लेकिन यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट हो रही है उसका फॉर्मेट नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है. नहीं That's why it is throwing error at line number 16. 16 ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ बेसिक डिटेल्स देख ली कि हाँ ठीक है. तो यहाँ पे एक्सेप्शन की डिटेल हमें मिल जाती है कि हाँ बेसिक एक्सेप्शन हमारा क्या है, और उस एक्सेप्शंस की डिटेल्स को हमें क्या करना है. वी कैन चेक. लेट्स से अगर एक्सेप्शन यहाँ आता है तो हम उस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करना चाह रहे हैं. हाँ तो ट्राई कैच ब्लॉक में हम यहाँ कर सकते हैं, वी कैन सेव इन अ लॉग फाइल, करेक्ट? जी किसी भी लॉग फाइल में हम एरर को सेव कर सकते हैं, एक्सेप्शन को. तो अगर हम यहाँ सेव करना है तो हम डेटाबेस में सेव का ऑपरेशन करेंगे, बट हेयर वी आर जस्ट ट्राइंग टू ex dot to string, राइट लाइन हाँ right? Similarly, we can access other properties, ex dot message, मैसेज हाँ and same way we can access the property of stack trace. These are important property, correct? So जी it is only get type. It is only get एक type. We will not able to save store any value instead. So stack trace. It is a property, not a method. Correct? This is a property. So here we are doing this. Now
let me again run it. So it's asking, suppose I give 20. So as of now, there is no कुछ नहीं। exception. Okay, let me run it again. I am providing 20p. So what is happening? System dot format exception, the input string 20p was not in a correct format, और उसके Correct. बाद उसने स्टैक मैसेज दिखा दिया। हाँ, तो यहाँ पे ये एरर तो आ गई, बट क्या होगा यहाँ पर हमने जो यहाँ पे सेव करना है एरर को, उस एरर हाँ को हम यहाँ सेव कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ ब्रेक पॉइंट लगाएं, ब्रेक पॉइंट लगा के काम करते हैं, लेट्स से यहाँ पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, डीबग मोड में है हमारा एप्लीकेशन, जी। ठीक है। इफ आई गिव 20p, हाँ so it is coming inside catch now, so we are able to go inside this block. So here you can save in log file, you can save the exception in database, you can email the exception instantly, correct, कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ से इस ब्लॉक में आने के बाद वो अपनी स्क्रीन पे जाएगा, तो इंटरनली हमको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। यूजर को इस तरह का अनफेयर मैसेज ये क्या समझ में आएगा, यूजर को नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो हमें इस चीज को अवॉइड करना है, तो अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फाइनली ब्लॉक को, कि अगर एरर आ जाती है कैच ब्लॉक में तब भी एटलीस्ट इतना काम कर दे। ओके, फाइनली मीन्स अगर कैच ब्लॉक में एरर हमें मिलती है, एक्सेप्शन मिलता है, तो जी। उस केस में तब भी इसको हर हालत में एग्जीक्यूट कर दे, करेक्ट। हाँ तो फाइनली में हमने दे दिया कि कंसोल डॉट राइट लाइन, और हमने इसको दे दिया रीट्राई। ओके, जी। ट्राई अगेन, ट्राई ये अगेन। So if exception comes, but this will execute. So let me run this. So I am giving 20a, this one. Okay. So नीचे it is ट्राई अगेन आ गया। saying try again. Correct. So in this way, we can show this message to user that what exactly you need to do in this situation, or you can contact at this number, you can send email if you are getting this. ओके, तो यहाँ पर जो बेसिक हमारा चलेगा ट्राई, कैच और फाइनली। कैच में जो एक्सेप्शन का हम यहाँ इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो एक्सेप्शन हमारी बेस क्लास होती है, इसी के अंदर सारे एक्सेप्शन होते हैं। अगर हम इस पे क्लिक करके F12 कर दें तो ये देखो, ये एक्सेप्शन की प्रॉपर्टी है, करेक्ट। यहाँ क्या क्या एक्सेप्शन, यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है एक्सेप्शन की, इससे स्टैक ट्रेस, सोर्स, मैसेज, कई बार हमको जो है गेट टाइप, उसका टाइप क्या है, तो हम इस प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इतने में कोई डाउट? और ये भी है, ट्राई के साथ अगर तुम कैच नहीं लगाते हो, यहाँ देख लो, ठीक है। ट्राई के साथ इस बार हमने क्या किया, कैच नहीं लगाया, ठीक है, और यहाँ पे हमने 20W दे दिया, तब भी फाइनली यहाँ क्या होगा, चल जाएगा। हाँ, जबकि एक्सेप्शन ये आ रहा है यहाँ पे, बट हमने यहाँ पे दिया नहीं। या फिर ऐसा भी हम कर सकते हैं यहाँ पर कि हम डिफरेंट एक्सेप्शंस को हैंडल कर सकते हैं, करेक्ट। तो जैसे हमने यहाँ पर दे दिया कि हमारा एक एक्सेप्शन है, एक पर्टिकुलर टाइप का एक्सेप्शन है, करेक्ट। तो पर्टिकुलर टाइप का एक्सेप्शन है कि अगर वो डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आता है, बोलो, हमने यहाँ पे बता दिया कि अगर डिवाइड बाय जीरो है तो ये मैसेज दो, ठीक है। डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, इसका नाम हमने रख दिया DV1, और यहाँ पे हमने मैसेज दे दिया कंसोल
डॉट राइट लाइन, हाँ ठीक है। और यहाँ पे हमने डिवाइड बाय 0 को मैसेज दे दिया कि कैन नॉट डिवाइड विथ जीरो। बाय 0, जी, कैन नॉट डिवाइड बाय डिवाइड बाई जीरो। 0। तो इस तरह का एक हमने यहाँ पे मैसेज दे दिया। ऐसे जी, ही हम कोई दूसरा एक्सेप्शन को हैंडल करना अब हमने चाहते अगर हैं। एक्सेप्शन को स्पेसिफिक दे दिया है, हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये एक्सेप्शन आएगा तभी वो उसे कैच करेगा, नहीं तो वो कैच नहीं करेगा। राइट। इसी जी, तरह से हमने दे दिया इनवैलिड, है ना, जी, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, ठीक। इनवैलिड तो ऑपरेशन में ये आ गया कि हम स्ट्रिंग को किसी नंबर के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी इनवैलिड ऑपरेशन, तो हमने इस इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन को यहाँ पे हैंडल कर लिया कि हम इनवैलिड ऑपरेशन में हम पर्टिकुलर यूजर को क्या मैसेज दिखाना चाहते हैं। अदरवाइज यहाँ पे EP1 में तो आएंगी ही चीजें, इसकी प्रॉपर्टी तुम यहाँ दिखा ही सकते हो, बट यहाँ पे तुमने दे दिया कि यहाँ कोई इनवैलिड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, जी, इन इनवैलिड ऑपरेशन, ट्राई अगेन। ये हमने इस या तरह फिर से हम दे ये दिया। कर सकते हैं कि हमने स्ट्रिंग में लिख दिया एरर मैसेज और उसके बाद हमने ये EP1 डॉट मैसेज कर दिया, तो हम्म, यूजर को पता भी लग जाएगा कि उसने गलती क्या करी। हाँ हाँ, ऐसे ही हमने कोई और एक्सेप्शन हैंडल करना है तो यहाँ पे हमने फॉर्मेट एक्सेप्शन दे दिया, फॉर्मेट एक्सेप्शन, इस तरह से हमने दे दिया यहाँ पे हम फॉर्मेट। एक्सेप्शन क्लास के अंदर की जो अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं या फिर अलग अलग जो उसके अंदर और फंक्शंस हैं उसको यूज कर रहे हैं, अलग अलग एक्सेप्शन क्लास को। हाँ, मतलब हम उसको बता रहे हैं पर्टिकुलर टाइप की एक्सेप्शन हुई है तो तुम ये करो, या या हम तो हम अगर हम एक्सेप्शन क्लास यूज करेंगे जो मेन क्लास है, तो वो सारे एक्सेप्शन उसके अंदर कवर हो जाएंगे, और अगर उसमें वो तो नहीं यूज करना है, हम्म, हमें अगर लगता है कि कोई स्पेसिफिक टाइप का ही इसमें एक्सेप्शन आ सकता है, तो हम इन सबको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने जी, दे दिया नॉट अ वैलिड फॉर्मेट, ठीक है। जी, इसी तरह से हमने कोई और एक्सेप्शन ले लिया कि एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, तो एरे हम्म, आउट ऑफ sound। अरे आई थिंक आउट ऑफ रेंज वाला होता है ना, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ गया। ठीक है, ये तो इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, ठीक है। जी, तो हमने कुछ भी नाम दे दिया इस तरह से, तो हम यहाँ पे इनवैलिड इंडेक्स गिवन whatever we want, जी, लेट्स से इस तरह से। तो अब इस बार हमने यहाँ पे कोई एरे ले लिया, करेक्ट। इस बार कोई हाँ हाँ, कोई एरे ले एरे ले लिया। लिया इस तरह से, न्यू एरे, ठीक है। और इसका हमने साइज बता दिया, हम्म, करेक्ट, हम्म, ये। और हमने यहाँ पे एरे 0 में दे दिया, फिर एरे 1 में दे दिया, देन वी आर ट्राइंग लाइक दिस, ओके, वी आर ट्राइंग लाइक हाँ, दिस, ओके जी। ठीक है। तो अगर अब इसको हम यहाँ रन कराएंगे तो क्या तो आ बताएगा, गया इनवैलिड इंडेक्स गिवन। हाँ, ठीक है। तो तो एक उसने प्रॉपर बाकी सबको इग्नोर कर दिया, बाकी सारी तो कैच, सब बाकी सारे जो कैच के ब्लॉक थे वो तो सही थे, जो इनवैलिड रेंज वाला था वो एक्टिवेट हो गया। हम्म, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है कि हाउ टू हैंडल द एक्सेप्शन and multiple catch block can be used or not, yes definitely multiple catch block can be used to यूज। handle different exception, right। फाइनली सबसे लास्ट में होगा, ये ना हो कि फाइनली यहाँ पे रख दिया है, करेक्ट। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू पुट फाइनली एट द बॉटम। लास्ट, ठीक है। और इसमें से कोई एक्सेप्शन आए या ना आए, बट ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ओ, ठीक है। ये हर बार जी, यूज होगा ही होगा। यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे
ट्राई अगेन लिख के आ रहा है ना, देखो ये तो इंडेक्स का मतलब कि ये एक्सेप्शन है। ब्लॉक सिर्फ तभी यूज होगा ना जब कोई एक्सेप्शन आएगा, अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तभी ये यूज होगा। कि अगर कोई अगर हमने नॉर्मल इनपुट दिया है हमने, जो किसी भी एक्सेप्शन में नहीं आता है, तब तो फाइनली भी रन नहीं करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, फाइनली हर हालत में रन करेगा। तो ठीक, हटा दिया। हाँ, अब कोई एक्सेप्शन नहीं आएगा। करेक्ट, तो नाम ही इसका है फाइनली, इसका नाम मतलब क्या है? ट्राई करो, एक्सेप्शन कैश हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तब भी ये काम तो करना ही है। ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। जी करेक्ट, जी। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम्म कैच में अगर हम लास्ट में यहाँ पे बेस क्लास का यूज कर रहे हैं, तो बेस क्लास का भी हम एक्सेप्शन यहाँ रख सकते हैं। करेक्ट, और इसको कहीं भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे, बट हाँ फाइनली लास्ट में होना चाहिए। जी दैट्स मस्ट। ओके, जी। तो ये है हमारा फाइनली एग्जीक्यूटिंग इन एवरी कंडीशन। हम्म लास्ट में होना चाहिए। बेस एक्सेप्शन को भी हम यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन होता है कि बेस एक्सेप्शन क्लास को अदर एक्सेप्शन क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली हाँ, इसमें आर्गुमेंट ऐसे नहीं पास कर सकते हो, ठीक है। हम्म। अलग अलग कैच ब्लॉक में अलग अलग टाइप के एक्सेप्शन हैंडल करना चाहिए ये। जी दूसरा है, बहुत ज्यादा ट्राई कैच लगाने लगोगे तो आपका एप्लीकेशन अफेक्ट होगा, उसका परफॉर्मेंस डाउन होगा। जी। अननेसेसरी ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लगाना चाहिए हम्म कि हर जगह अननेसेसरी लगा रहे हैं। जी। ओके, तो गिटहब पे कुछ आगे, मतलब गिट पे करना है आगे कुछ काम, गिट बैश पे। बताएंगे। अब ये भी हो सकता है कि हमारे पास इसमें कोई पैरामीटर ही ना हो, बोलो हाँ यहाँ पे, और ये हम कोई पैरामीटर लेस कैच ब्लॉक यूज कर रहे हैं ऐसे, बोलो। जी और इसमें हमने यहाँ पर दे दिया कोई भी मैसेज, जी। एक्सेप्शन अकर्ड, हम्म। ये हाँ, तब भी ये काम करेगा। नहीं। अब इसमें यही बात तो है, पैरामीटर लेस कैच ब्लॉक को यूज नहीं करना चाहिए। करेक्ट, अगर हम यहाँ एरर जनरेट कर रहे हैं, आउट ऑफ रेंज वाला किया हमने, हम्म, ये अब मतलब ये रन, भी है, रन नहीं करा उसने। आउट ऑफ रेंज यहाँ पे मिला इसको ना। हाँ हाँ हाँ, वो उसने नीचे वाला इग्नोर ही कर दिया उसने। लेट मी पुट दिस हियर। देखो क्या हो रहा है। वो आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। कंपाइल टाइम में ही 4 एरर आ रहे हैं उसमें, हम्म, कि कंपाइल टाइम पे ही एरर आ रहे हैं उसमें, कि जो है आप ये इसमें आपने विदाउट पैरामीटर वो दे दिया है। हम्म। Catch। नहीं, यहाँ ध्यान से देखो, पैरामीटर लेस वाले को हमने यहाँ हम्म। रखा। हाँ, तो यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है, बट ऊपर एरर आ रहा था, वही तो समझ हाँ, नहीं तो पा ये रहा। यही तो इसको समझना है, पैरामीटर लेस कैच ब्लॉक को लास्ट में रखना चाहिए। पैरामीटर लेस का यूज करना ही क्यों, जब वो पकड़ ही नहीं पा रहा है तो फिर यूज करेंगे क्यों।
मान लो ये है ही नहीं, फॉरगेट। जी। हाँ बट ये याद रखना है कि पैरामीटरलेस कैच ब्लॉक अगर है तो जी, वो वो फाइनल लास्ट में होगा, फाइनली लास्ट के में जस्ट होना ऊपर। चाहिए। हाँ, और अगर मान लो ये नहीं है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हमने इसको हटा दिया, करेक्ट। हम्म। हाँ, समझ आया कुछ? कोई और एक्सेप्शन को हमने कैच नहीं किया है तो हम ये ऐसे कर सकते हैं, एक्सेप्शन अगर अकर्ड हाँ, हमने तो काम पैरामीटर, करेगा, बट तो इसको यहाँ पैरामीटरलेस को यूज करना नहीं चाहिए, बट नहीं कर सकते हैं, अगर यूज कर रहे हैं तो पैरामीटरलेस कैच ब्लॉक कहाँ होना चाहिए? सबसे लास्ट में, फाइनली के जस्ट ऊपर, सेकंड लास्ट मतलब, लास्ट में होना चाहिए, फाइनली के पहले, जस्ट है ऊपर। ना, हाँ बिफोर फाइनली ब्लॉक। ये भी चीज हो सकती है, बट यहाँ ध्यान, तो अब इसमें इंटरव्यूअर यही तो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि तुमने ट्राई कर ढंग से करा है काम सिस्टम पे कि नहीं किया है, जी। एक्सप्लोर किया कि नहीं किया। तो जिसने केवल पढ़ लिया है और एक्सप्लोर नहीं किया तो वो फिर दिक्कत आएगी। यहाँ ये भी याद रखना है कि ट्राई कैच ब्लॉक की चेनिंग, ये भी वर्ड होता है एक, चेनिंग। तो चेनिंग का मतलब कैच ब्लॉक, मल्टीपल कैच ब्लॉक या कैच ब्लॉक की चेनिंग, तो चेनिंग यही है। अगर ये एरर आया तो बाकी यहाँ पे, सारे कैच नहीं रन करेंगे। अगर यहाँ एरर आ गई तो इसको ये शो कर देगा। मान लो हम यहाँ पे डिवाइड बाय जीरो भी बना रहे हैं, बोलो, हम यहाँ डिवाइड बाय जीरो भी बना रहे हैं, करेक्ट। हाँ इनफैक्ट यहाँ पे ये ऐसा कुछ कर रहा है कि अभी ये हमको रेड कलर का पहले ही कंपाइल टाइम पे इसने बता दिया, बोलो। हाँ बट हमने ऐसा कर दिया कि ए जीरो, एरे जीरो, हम ऐसा कुछ कर दें कि कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, जी जी। इस तरह से। तो अब इसको कहाँ हाँ पता चल रहा है? हाँ, उसको नहीं पता चल रहा है ये तो, ये हाँ, कंपाइलर के साथ धोखा हो जाएगा। हाँ, तो उससे नहीं पता चल रहा है कि ये लॉजिकल इशू क्रिएट हो सकता है कहीं भी। उसको क्या पता कि क्या मतलब वो है। इवेल्युएट अभी नहीं कर रहा है, बट उसको ये लग रहा है कि हाँ जो सिंटैक्टिकल चीज है वो सही है। हम्म। और जब वो रन, अच्छा ये इस तरह के भी एरर हो सकते हैं। और क्या, बिजनेस मतलब रूल फेल। बेवकूफ बना दिया कंपाइलर को कि जो है सब सही है, लेकिन एक्चुअली में वो चीज तो वही लिखी है। हाँ, तो अब हम इसको अगर यहाँ एग्जीक्यूट कराएं तो डिवाइड बाय जीरो हमने सबसे पहले ले रखा है, और हाँ एरे आउट ऑफ रेंज यहाँ है, बट हमने इसको हैंडल यहाँ किया है, करेक्ट। नीचे कर, जी जी। अब देखो, ये देखो, इनवैलिड इंडेक्स गिवन, ठीक है। मतलब कि जो भी एरर पहले आएगा वो उसको कैच करेगा एंड प्रोग्राम को एंड कर अब देगा अ- फाइनली के साथ। अब इसको कमेंट कर दिया, ठीक। हाँ, अब ये नाउ, डिवाइड बाय जीरो वाला आना चाहिए। नहीं, आया ही नहीं वो डिवाइड बाय जीरो वाला। अब आना चाहिए। वो क्यों होता है पहले जानते हो? पहले वन से डिवाइड कर दे रहा था, उसके हाँ, बाद वो माइनस वन कर रहा था, तो वैल्यू पी में माइनस वन स्टोर हो जा रही थी। इसको हमने स्टैक में रख दिया। हाँ, अब स्टैक क्या पहले होता है? अब पहले ब्रैकेट को इवेल्युएट करेगा फिर डिवाइड करेगा। नाउ वो दिस वे, बॉड, हाँ बॉड मास वाला रूल अप्लाई होता है। जी। ठीक है। तो जो, तो इसका मतलब क्या समझे कि अगर एग्जीक्यूशन का जो हमारा चल रहा है, तो जो भी टॉप लेवल पे कैच ब्लॉक हैं जहां पे एरर आ जाएगी उसके बाद ब्रेक करेगा, है ना। हाँ, उसके बाद वो ब्रेक कर देगा, फिर बाकी ब्रेक एक्सेप्शंस को नहीं, कैच बल्कि नहीं करेगा। बल्कि ये बोलना चाहिए कि रेस्ट ऑफ द और एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेगा, नहीं करेगा, अवॉइड कर देगा उनको। बट फाइनली विल एग्जीक्यूट। हाँ और ये वाले को लास्ट में रखना है। जी। तो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है हमारी। जो पैरामीटर लेस एक्सेप्शन है वो उस केस में रन करेगा जब हमारे बाकी सारे कैच ब्लॉक के एक्सेप्शंस नहीं होंगे।
हाँ लेट्स से मान लो हम यहाँ पे, मतलब अगर ये जो, हाँ ये जो सारे हैं, अगर ये चारों मैच नहीं हुए एक्सेप्शन, अगर कोई पांचवा एक्सेप्शन हो गया, तब नीचे वाला कैच एक्सेप्शन अपने आप रन हो जाएगा ना। अब यहाँ पे हमने ये दे रखा है आउट ऑफ हाँ रेंज आउट का। ऑफ रेंज दे रखा है जी। तो पहले हमने इसको रन कराया तो क्या आ गया, आउट ऑफ रेंज वाला। इनवैलिड इन, हाँ जी। अब मान लो इसको हमने कमेंट कर दिया। हाँ और नीचे ठीक। हमने ब्रैकेट लगा दिए। और हमने अब पैरामीटर लेस वाला आ गया, ये फाइनली एग्जीक्यूट हो गया। हाँ हमने अभी वो ब्रैकेट नहीं लगाया ना, अभी हमने तो 1 - 1 वाला। हाँ ये हमने फाइनली एग्जीक्यूट करा। हाँ ये तो अब फाइनली एग्जीक्यूट, वो तो होगा ही होगा। यहाँ पे जीरो से डिवाइडेशन हो रहा है, तो अब वो ये एक्सेप्शन अकड़ा, वही बस यही क्लियर करना था एक्सेप्शन कि अगर अकर। हमने किसी एक्सेप्शन को स्पेसिफिकली हैंडल नहीं किया, हम्म। तो फिर जो हमारा पैरामीटर लेस वाला एक्सेप्शन है, कैच वाला, वो रन करेगा। हम्म। नहीं तो जो हमने स्पेसिफिकली हैंडल किए हैं वो रन करेंगे, और फिर बाकी को इग्नोर कर देगा, अवॉइड कर देगा। अगर यहाँ पे हमारा ये वाला बेस वाला भी है, बेस क्लास जहाँ यूज कर रहे हैं, करेक्ट। हाँ ये ठीक है। जी तो यहाँ पे हम बेस को भी यूज कर रहे हैं। ओके। जी। तो अब ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब ऑलरेडी एक ऐसा आपने डिफाइन कर दिया एक्सेप्शन ऊपर, जहां हम्म। पर सारे एक्सेप्शन जिसके अंदर आ जाएंगे, तो इसको करने का मतलब ही नहीं है। हाँ ये वार्निंग है, ग्रीन में क्या आ हाँ गया, वार्निंग। जो ग्रीन स्क्विगलिंग लाइन आ गई है, तो इसमें ये वार्निंग शो कर रहा है, एरर नहीं है। A previous catch clause is already catching all exceptions. All non-exceptions thrown will be wrapped in system.runtime.compiler services.runtime wrapped exception। मतलब कि अब जो आपने एक्सेप्शन क्लास ही ऊपर डिफाइन कर दी है हम्म। पैरामीटरलेस कैच के पहले, हम्म। अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो सब उसी के अंदर आ जाएंगे, तो मेरी जरूरत नहीं है वैसे। हम्म। तो ये वार्निंग शो करेगा, बट इफ यू रन, तो रन हो जाएगा। हाँ, या हमने इसके पहले वाले यहाँ से हटा दिए कुछ टाइम के हाँ लिए, हाँ तो ऑलरेडी वो हैंडल हो गया, हाँ। फाइनली को रन करा दिया। तो इसमें आने की कोई जरूरत है नहीं। नहीं है। तो अब सारा एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आया। जी ये मतलब जो है एक प्रॉपर जो है यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। ये एक एग्जांपल था जिससे तुमने सारी चीजें समझी। अब एक दूसरा एग्जांपल है कि समटाइम्स हमारे पास मान लो कोई वेर करके हमने ले लिया है ना, हाँ हाँ और एक्स इक्वल हमने 0 ले लिया। जी। ठीक है। तो वेर तो वैसे ही रन टाइम पे देखेगा। हाँ वैर तो रन टाइम पे चेक करेगा कि वैल्यू है क्या हमारी, मतलब क्या, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डेटा टाइप। हाँ और दूसरा वेर में खासियत ये होती है कि जब इसको तुम डिक्लेयर करोगे उसी टाइम इसको तो वैल्यू उसी टाइम प्रोवाइड। वैल्यू देनी, उसी टाइम इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो कंपाइल टाइम एरर ही आ जाएगा। अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं ये तो नहीं एरर वो आएगी। लेगा ही नहीं। ठीक है। तो लेट से हमने यहाँ पर कोई वैल्यू दे दिया, और यहाँ पे जी हमने ट्राई लगाया, और उसके बाद क्या लगाया, कैच। करेक्ट। ये हो गया जी। हमारा। अब इसके अंदर भी हम ट्राई कैच लगा सकते हैं। ट्राई जस्ट ट्राई गैस। कैच। लेट से, मतलब कि अगर हमने ट्राई के अंदर कोई हमने एक्शन परफॉर्म किया, और अगर उसके अंदर भी एक्सेप्शन आ जाता है, नहीं हम यहाँ मतलब लगा सकते हैं, तो इसके अंदर भी ट्राई कैच लगा सकते हैं। जी। तो ये इनर एक्सेप्शन कैच करेगा, हाँ ये आउटर एक्सेप्शन कैच करेगा। जी।
अगर अब यहाँ पे इस तरह से दे दें कि where result इक्वल टू, है ना, 100 डिवाइडेड बाई x, जी दे दिया। हाँ और यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि ये इनर एक्सेप्शन है। बोलो, जी इनर एक्सेप्शन। So here we are handling inner exception और यहाँ हम आउटर एक्सेप्शन दिखा रहे हैं। आउटर एक्सेप्शन, राइट, हो गया। ये पैरामीटर लेस वाला है। जी पहला कंसेप्ट ये जो सीख रहे हो कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक है तो इनसाइड ट्राई वी कैन यूज अनदर ट्राई कैच ब्लॉक। जी फाइन, करेक्ट। हमने एग्जीक्यूट करा दिया। इनर इनर एक्सेप्शन इनर एक्सेप्शन मिल गया इसको, तो आगे जाने की जरूरत नहीं नहीं। पड़ी। अगर हमने बेस क्लास यहाँ यूज कर ली होती, हाँ जी हाँ, ऊपर आ गया इनर एक्सेप्शन, तो लिखा है सिस्टम डॉट डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन लाइन नंबर 21। 21। तो यहाँ पैरामीटर लेस भी हो सकता है, जी पैरामीटराइज्ड भी एक्सेप्शन हो सकता है। हाँ, और बेस बट क्लास भी हो सकती है। हाँ, हाँ, और ये भी है कि भाई मान लो तुम ऐसा कर रखा हो तुमने और इसका नाम ये रख दिया। यहाँ क्या बता रहा है? वो बता रहा कि बेस क्लास का यूज आप ऑलरेडी कर चुके हैं ऊपर एक बार। हाँ, तो दो दो बार नहीं हो सकता, करेक्ट। हाँ अगर हमने बेस क्लास एक्सेप्शन या किसी एक्सेप्शन को रिपीट करेंगे तो इनफैक्ट नहीं तो एरर आएगा ही। पैरामीटर लेस को अगर चाहें लाइक दिस, तब भी क्या बता रहा है? पहले पैरामीटर लेस वाला क्यों यूज किया, नीचे वाला हमारे पास वो है तो। ठीक है, अब नीचे लगाओ, चेनिंग करो। अब ये तुमको बताएगा वो, क्योंकि इसका रूल है, इसको तो आखिर में रखना है। हाँ, इसका रूल है आखिर में रखना है, बट वो स्क्विगलिंग लाइन इसलिए आ रही है कि कह रहा है कि जब भैया आपने सारे एक्सेप्शन आपने ऊपर ही हैंडल कर लिए हैं एक्सेप्शन की बेस क्लास रख के, तो हमारी हाँ, जरूरत है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ एरर नहीं देगा, हाँ बट यहाँ रख रहे हो तो इसको ये नेक्स्ट वाले में बताएगा कि ये जब कर ही रहे हो, कैचेज क्लास कैन नॉट फॉलो द जनरल कैच, है ना, क्योंकि इसका रूल है रखना इसको लास्ट में ही। लास्ट में रखोगे तो ये चल जाएगा बट कोई यूज नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड हियर। फाइनली हाँ यहाँ देना बेस चाहो, क्लास। फाइनली हो सकता है, करेक्ट। हाँ फाइनली यहाँ भी हो सर, सकता है। इसी में एक आउटर एक्सेप्शन का अगर एग्जांपल दिख जाएगा तो क्लियर हो जाएगी चीज, क्योंकि इनर आउट, एक्सेप्शन का तो क्लियर हो गया, बट इस वाले ट्राई में आउटर एक्सेप्शन कैसे होगा। अच्छा, ये वाला ब्लॉक तुम चाह रहे हो? हाँ, ये कब रन होगा या ये कैसे रन होगा। इनर वाला तो क्लियर हो गया कि हमने ट्राई कैच के अंदर ही एक टास्क परफॉर्म कर लिया, हम्म, और अगर उस ट्राई कैच के अंदर कोई एरर आएगा तो इनर वाला एक्सेप्शन हमारा रन हो जाएगा, बट हम्म, आउटर वाला कब रन होगा। क्योंकि सारा काम तो अगर हमने ट्राई कैच जो मेन वाला है, जो आउटर ट्राई कैच है, अगर उसके अंदर हमने एक और ट्राई कैच को नेस्ट कर दिया और फिर अंदर ही हम एक्सेप्शन हैंडल कर ले रहे हैं, तो बाहर वाला कभी रन होगा ही नहीं। हाँ, रन होगा, अभी बता रहे हैं। तो इसको मैं अभी फिलहाल हटा देता हूँ, जी नॉर्मल बना दे रहा हूँ। यहाँ पे हमने दूसरे टाइप का ले लिया, मान लो हमने लिया नल रेफरेंस, करेक्ट।
हाँ जी, और यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ये बेस वाला क्लास एक्सेप्शन, दे दी। आउटर एक्सेप्शन। ओह, हाँ, करेक्ट। अब समझ गए। अब तुम देखो, आउटर एक्सेप्शन आ गया जी, क्लियर हो गया। कि भाई अंदर में जो तुमने स्पेसिफिक टाइप का एक्सेप्शन, भाई तुम बेस क्लास यूज कर लोगे तब तो वो कर ही देगा, हाँ तब तो वो कभी नहीं आएगा। जी जी, तो तुमने अंदर हैंडल किया कि भाई ये वाला है, ये वाला है, अरे आउट ऑफ बाउंड आए, मेमोरी ओवरफ्लो आए पर्टिकुलर टाइप का, तो वो तो ठीक है, मैचेस देन ओके। हाँ तब तो अंदर वाला रन हो जाएगा। नहीं, अगर वो मैच ना करेगा ही नहीं, तो हाँ अंदर का ना ट्राई मैच हुआ ना एक्सेप्शन कैच हुआ, तो बाहर वाला एक्सेप्शन कैच हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ अंदर पे का ट्राई और कैच ब्लॉक ना चलना भी एक एक्सेप्शन ही है ना एक तरीके से, हाँ तो बाहर वाला एक्सेप्शन रन हो जाएगा। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे अगर बेस क्लास को यूज करके एक्सेप्शन का हैंडल किया है यहाँ पे, तब तो फिर यहाँ कभी नहीं आएगा। हाँ करेक्ट, वही हम बट सोच रहे थे। अगर स्पेसिफिक टाइप का एक्सेप्शन हम लेते हैं, तब फिर बाहर वाले पे आ जाएगा, जंप कर हाँ जाएगा। तो हमने 4 टाइप के एक्सेप्शन हैंडल किया, नहीं मैच कर रहा तो आउटर पे आ जाएगा। हाँ ये है। तो अब एक इसमें बचा है थ्रो। तो ये हाँ इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे कल। जी तो इसको प्रैक्टिस भाई कर लेना आज सारा, है ना, जी जी इन डिफरेंट वे इसको प्रैक्टिस करना। जी क्योंकि देखो एरर हैंडलिंग तो जरूरी है, इट इज मस्ट हैव पार्ट है, जी मस्ट है, मतलब किसी भी डेवलपर को एरर समझना हैंडल करना ये मस्ट हैव पार्ट में आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक वी विल हैव थ्रो, देन वी विल क्रिएट अवर कस्टम एक्सेप्शन। ओके, कि कस्टम एक्सेप्शन हम कैसे बना सकते हैं और उसको कैसे पर्टिकुलर जी टाइप की सिचुएशन के लिए। ओके